Okay, Assalamu alaikum students. So this is Shafat bin Masood. Today I'm discussing Physics 5054. Uh, Today's our topic is chapter number 4, electricity and magnetism, and topic is electrical quantities. Before starting on this chapter, special thanks to Rida Fatma for preparing the notes. Well, I'm not going to write on a lot of things. Mostly, you guys have to copy it from the notes. मैं आप लोगों को inshallah in this lecture I will be going to explain the things which are written in these. Okay. So let's talk about the electrical quantities charges. अच्छा बेटा, what is a charge? So first question is that कि charge क्या होता है? Before moving on to the charge, हम इस chapter में what we will discuss in the electricity and the magnetism. This chapter में we will talk about the different quantities like what's a charge, what is a current, what is the voltage, and how we are going to measure the current or the voltage. हम उनके लिए कौन से equipment use करेंगे? We will talk about the means. In generally, we will talk about the ammeter. We will talk about the voltmeter. We will talk about the manometers and the galvanometers. हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे. Multimeters के बारे में बात करेंगे. Along with that, we will talk about the transformers, the safety precautions for the home appliances इनके बारे में बात की जाएंगी और आप ट्रांसफॉर्मर्स कैसे वर्क करते हैं व्हाट इज द जनरेटर वी विल टॉक अबाउट द फ्लेमिंग राइट एंड लेफ्ट हैंड रूल्स इससे कि हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे लेकिन बिफोर दैट लेट्स स्टार्ट विद द चार्ज हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे सो द बेसिक ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी और द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फॉर द इलेक्ट्रिकल चैप्टर्स दैट्स अ चार्ज चार्ज कहते किसे हैं सो बेटा देखो इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी of the matter which cause the body to experience a force when it is in the electrical field. Like for example, if I'm having any charge over here, basically you guys are familiar with that we have two types of charges, a positive and negative charge. Like for example, if I'm having a charge over here, that's a, let's call it a positive charge, okay? And here in an electrical field, I have some source of the electrical field. Sorry. Let me make a proper square, rectangle over here. Okay, just consider it as a rectangle. Okay, like this. Okay. So I'm having a positive charge over here. मेरे पास इसमें भी एक पॉजिटिव चार्ज है एंड आई एम हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर अब हमें पता है दैट पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज रिपल्स टू ईच अदर सो ये रिपल्जन होगी इनके बीच में दीज चार्जेस विल नॉट अट्रैक्ट टू ईच अदर ये एक दूसरे से दूर जाएंगे सो ये चीज होती है अब दिस इज दी ये जो पॉजिटिव प्लेट है और इसके फ्रंट पे मैं एक पॉजिटिव प्लेट इस रख देता हूँ तो दीज टू प्लेट्स आर एक्चुअली these two plates have some electrical field between them इनके बीच में electrical field होगी जैसे magnets की fields होती है so इनके बीच में भी electrical fields होगी और positive charge आने की वजह से उन electric field में एक disturbance पैदा होगी ये जो डिस्टर्बेंस होती है इससे हमें डिफाइन हुआ कि अच्छा सो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है ये एक प्रॉपर एक क्वांटिटी है जिसकी वजह से जो फील्ड है उसमें एक फोर्स फील हुई है और उसमें चेंजेस पैदा हुए सो हम लोगों ने इन चार्जेस को वी नेम्ड इट इनटू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस फॉर आवर कन्वीनियंस लाइक हम लोगों ने अपनी कन्वीनियंस के लिए लेट कॉल दिस एज अ पॉजिटिव चार्ज एंड लेट कॉल द अदर टाइप ऑफ चार्जेस जो इसके अगेंस्ट चार्जेस को नेगेटिव चार्ज किए देते हैं लाइक हमें कुछ कंफर्म हमें साइंस नहीं पता था बट we for our convenience we do this so when we talk about the positive charge we actually talking about the protons हम लोग जब भी पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे we are talking about the proton और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं that is electron so the charge on both electron and proton is 1.6 multiplied by 10 to the power minus 19 coulombs. Just the difference that for a proton we use a positive sign and for the electron we use a negative sign. The SI unit of this charge is coulombs. इसको हम लोग coulomb से represent करते हैं अब बेटा जो मैंने शुरू में आप लोगों को बात की थी लाइक कि जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं अब इसकी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ लाइक इफ यू हैव टू मैग्नेट्स और एक आपका मैग्नेट है दैट इज लेट मेक इट अ प्रॉपर मैग्नेट that you have a magnet and you have a you have a north face on over here and एक और magnet है उसका north face है तो ये दोनों सेम फेसेस है तो सेम फेसेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करती है ये एक दूसरे के अगेंस्ट एक दूसरे को रिपेल करेंगे आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट्स घर में किए हुए हैं कि जब भी आप नॉर्थ पोल के सामने करते हो तो आपका मैग्नेट उसको रिपेल करता है लेकिन ऑन द अदर हैंड जब भी आप नॉर्थ पोल के सामने साउथ पोल करते हैं या साउथ पोल के सामने नॉर्थ पोल करते हैं सो दे अट्रैक्ट टू ईच अदर वो एक दूसरे की तरफ बॉन्ड बना लेते हैं दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग टू ईच अदर और वो एक दूसरे की तरफ जो है प्रॉपरली अट्रैक्ट होते हैं लाइक इट मूव्स ओवर देयर एंड ये इसकी तरफ मूव होता है एंड एक प्रॉपर बॉन्ड बन जाता है और ये आपस में अटैच हो जाते हैं सो सेम केस है इन द इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक चार्जेस और मैग्नेट में कोई फर्क नहीं है जस्ट पोल्स का फर्क है इसमें हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द चार्जेस और मैग्नेट में हमारे पास नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं so here
the light charges repel. Light charges, it means that the positive and the negative will repel to each other. Unlike charges will attract to each other like positive and negative. Okay. Now, the force of electric charges. अच्छा now let's talk about the some other things. ये जो चीज़ है ये statement initially आप लोगों को थोड़ी सी confusion देगी. It will be a little bit confusing for you, but आपको with the time ये चीज़ clear हो जाएगी जब हम लोग इनके लिए proper electric fields डिजाइन करेंगे तो आपको ये चीज़ें clear हो जाएंगी. Okay, so I'm saying that the force of the electric charges decreases as the separation increases and the vice versa. Like for example, इसको हम electrical charges को अगर मैं simply magnetic language में समझाना चाहूँ क्योंकि मैंने आपको क्या क्या दोनों एक ही चीज़ है just we have a difference in the poles. So if I'm having a north pole over here and I'm having a south pole over here, okay. Now initially you guys are saying that sir over here we have a strong attraction, we are going to have a very strong attraction क्योंकि दोनों बहुत करीब है. But let's suppose I just moved it from here to here. अब मैंने इसको इस तरफ मूव कर दिया वो here. अब आप कहोगे सर यहाँ पे अट्रैक्शन लो हो गई है क्योंकि ये आपस में दूर हो गए. सो इट इन अदर वर्ड जितना आप इनकी बीच में सेपरेशन इंक्रीज करोगे तो इनकी बीच में अट्रैक्शन जो होगी वो लेसर होती रहेगी. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब हो जाएगी. एंड इनकेस अगर आप इसको राइट को मूव करते हो साउथ को नॉर्थ की तरफ या नॉर्थ को साउथ की तरफ मूव करते हो और आप इनके बीच में डिस्टेंस कम करते हो यू विल फाइंड आउट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज. ठीक है. नाउ तो ये चीज जो है इसी बात को एक्सप्लेन कर रही है. Now, it's an important note. You have to familiar with that. The note is saying that the hydrogen atom only contains one proton and one neutron. Okay, so in a one proton and a one electron, and we have no neutron in a hydrogen atom. Hydrogen atom के आपके पास cell में one proton है and one electron है. Like whenever I want to make the hydrogen, so मैं उसके nucleus में वन प्रोटॉन शो करूंगा और उसके फर्स्ट ऑर्बिट में मैं वन इलेक्ट्रॉन शो करूंगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके सो व्हेन यू टॉक अबाउट द अदर एटम्स उनमें आपके पास यू हैव न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियस. ओके नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Only electron moves when the charge applied and the proton will remain fixed. Here, what we want to explain there कि जब भी आपको हम कहते हैं कि that the charge is moving, it doesn't mean that the proton is moving. अच्छा आपके पास you have a positive charge जो कि आपको हमने कहा था that's a proton and you have a one negative charge that is electron. तो जब भी आपके पास when there is a movement in the electric wire, so your only electron is moving. आपका प्रोटॉन कभी भी मूव नहीं करता. इट्स अ फिक्स्ड एंटिटी. ठीक है. सिर्फ आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है इट कैन मूव. ओके नाउ let's talk about the insulator in the term of electrons. So when you talk about the insulators, so insulators में क्या होता है बेटा. Like for example we have some examples of insulators like nylon हो गया, dry air हो गया, polythene हो गया, wood हो गया, paper हो गया. What happened over here that in these atoms the electrons are formally bound and there is no free movement. Like for example if I'm having some, let I have to remove this protons and electrons portion or I'm going to move it a little bit up ताकि हम लोगों का space बचे. So it's over here. Okay, so okay, so अच्छा अब बेटा मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि like for example if I'm talking about the insulator मेरे पास एक बॉक्स है. लेट्स सपोज इट्स अ स्केल. एक स्केल है. अब इसमें जो एटम्स है वो आपस में फॉर्मली बाउंड होते हैं. एटम्स बहुत फॉर्मली बाउंड होते हैं और उसकी वजह से देयर इज नो चांस ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू स्केप. इलेक्ट्रॉन स्केप नहीं कर सकते क्योंकि एटम बहुत फॉर्मली बाउंडेड है. बहुत फॉर्मली बाउंडेड है और इनमें एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं भी तो वो फॉर्मली बाउंड होने की वजह से वो मूव नहीं कर सकते. while when you talk about the मेटल, अगर आप किसी मेटल की बात करते हैं जो कि कंडक्ट है, लेट कॉल इट वुड और एनी इंसुलेटर और ये मैं लेट सपोज कोई भी मेटल है, इट्स अ मेटल. तो जब मेटल की बात करते हो उसमें आपके पास यू हैव सम स्पेसेस फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव. like this electron can move over here, this electron can move over. What happened in a metals, अब आपके पास metals में you have a free space for the electrons to move. लाइक आपका इलेक्ट्रॉन जो है इट्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और आपका एटम नहीं मूव होता. जस्ट इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम. आपके इलेक्ट्रॉन्स के पास स्पेस होता है. यू हैव सम स्पेसेस फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. So that's in a word or in the insulator you don't have those things. So up better we are talking about the
इंसुलेटर्स, अब इंसुलेटर्स में क्या होता है, वी हैव इन इन इंसुलेटर्स वी आल्सो एक्सपीरियंस द चार्जेस, हम इसमें भी फील करते हैं, दैट इज नोन एज स्टैटिक चार्जेस. The static charges will produce on rubbing as the electrons are not free to move from where the rubbing occur. अब होता ये है कि लाइक फॉर एग्जांपल आप लोगों ने विंटर में एक चीज नोट की होगी, ड्यूरिंग द ड्रायर एंड द विंटर आप लोग जब भी किसी भी आपकी बॉडी जो होती है, मिसाल के आप लोगों ने यू यू गाइस आर वेयरिंग अ ब्लैंकेट और यू आर गाइस वेयरिंग एनी आपने वो लिया हुआ है लाइक कोई भी आप लोगों ने जैकेट पहनी है, स्वेटर पहना हुआ है, एंड आप जब उससे उतारते हो तो आपकी और आप किसी भी मेटालिक चीज को हाथ लगाते हो तो एक स्पार्क आपकी फिंगर से या आपकी बॉडी से प्रोड्यूस होता है और आपको एक फील होता है कि एक करंट आपकी बॉडी से गुजरी, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्टैटिक चार्ज. इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे जो सिंपल रीजन है दैट इज ड्यू टू दिस स्टैटिक चार्ज. जो आपकी आपकी जब रबिंग होती है तो आपकी जो कप नायलॉन का क्लॉथ है या जो आपने ब्लैंकेट पहना हुआ है उसकी वजह से इसमें एक स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस होता है और वो चार्ज उसी स्पेसिफिक एरिया में रह जाता है, वो आगे मूव नहीं हो सकता. और वो जो है वो आपकी बॉडी के थ्रू जब वो ग्राउंड होता है, अर्थिंग होती है, उसको ग्राउंडिंग मिलती है तो आपकी बॉडी से ट्रेवल करते हुए एक आपको हल्का सा एक शॉक सा लगता है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक चार्ज. सो फॉर दैट आई हैव सम एग्जांपल, लेट्स एक्सप्लेन ओवर हियर. अच्छा देखो, जैसे बेटा मैंने यहाँ पे ऊपर डिफाइन भी किया दैट इन अ मेटल वी हैव अ स्पेस फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव. ठीक है, नाउ कंसीडर ओवर हियर दैट वी हैव सम स्केल. ओके, आई एम जस्ट मेकिंग इट अगेन फॉर यू गाइस. नो दिस इज द स्केल, 1 फुट है स्केल है, ठीक है. एंड लेट वो है, मैं इस पोर्शन तक जो है इस एरिया को ना, जिस जो मैंने लाइन लगाई है, मैं इस एरिया को एक क्लॉथ के साथ रब कर रहा हूँ. आई एम रबिंग विद सम क्लॉथ. ठीक है, नाउ बिफोर रबिंग हम लोग जो है इसको देख लेते हैं. सो व्हाट वुड हैपन बिफोर रबिंग. तो आई एम मेकिंग ओवर हियर. अच्छा, अब अच्छा, बेटा बिफोर रबिंग यू गाइस विल फाइंड आउट कि जो आपके पास मेटालिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पे जो चार्जेस होते हैं, लाइक सॉरी मेटालिक नॉन मेटालिक या कोई भी चीज हो, जब वो उस पे चार्ज उसने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो, जब तक वो न्यूट्रल है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस वुड बी लाइक दिस. वो किसी भी अरेंजमेंट में हो सकते हैं, लाइक दिस, किसी भी तरीके से वो बड़े हो सकते हैं, पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, लाइक मतलब वो रैंडमली प्लेस होते हैं. अब मैंने जब इसको रब किया, सो व्हाट वुड हैपन वो है, लेट कंसीडर दैट कि इस क्लोथ के साथ रब होने की वजह से इसने अपनी हीट जनरेट हुई है और हीट जनरेट होने की वजह से इसने लेट सपोज अपने जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं उसको अपने पास नीचे जो है उसको अरेंज कर दिया. तो इट्स अरेंजेस नेगेटिव चार्जेस एट द बॉटम, और लेट कंसीडर कि उसने पॉजिटिव चार्जेस ऊपर की तरफ उसको सेटल डाउन कर दिया. अब बेटा जब ये स्केल जो है ये आपके पास किसी भी पीस ऑफ पेपर के साथ आएगा, लाइक गिव मी अ मिनट. अब आप देखें तो अब ये जो पीस ऑफ पेपर है जो रबिंग के बाद उसमें हमारे पास बिलो और दिस पोर्शन वी हैव सम नेगेटिव चार्जेस, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस थे. और वो किसी भी जब पीस ऑफ पेपर के पास आएगा, लेट्स कंसीडर ये मैं यहाँ पे एक पीस ऑफ पेपर बनाता हूँ, लाइक दिस इज अ पीस ऑफ पेपर. एंड इस पीस ऑफ पेपर में भी इनिशियली हमारे पास जो चार्जेस थे दे वो रैंडम. ठीक है, तो दिस इज अ पीस ऑफ पेपर और चार्जेस हमारे पास रैंडम थे, पॉजिटिव नेगेटिव आइंस दोनों हमारे पास रैंडमली मौजूद थे. ठीक है, इट वॉज नॉट लाइक कि एक साइड पे पॉजिटिव एक साइड पे नेगेटिव चार्जेस थे. ठीक है, तो इट्स नॉट अ रैंडम. ओके, अब मैंने जैसे वो पीस ऑफ पेपर इसके करीब लाया, सो व्हाट हैपेंड ओवर हियर, पीस ऑफ पेपर जो है उसके अंदर चार्जेस जो है अपने आप, चूंकि यहाँ पे ऊपर नेगेटिव है, सो आप हमने पहले भी डिस्कस किया कि लाइक अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर. तो यहाँ पे नेगेटिव होने की वजह से पीस ऑफ पेपर अपने पॉजिटिव चार्जेस ऊपर की तरफ अरेंज कर लेगा और नेगेटिव चार्जेस नीचे की तरफ अरेंज कर लेगा. एंड यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि जितने आपने पॉजिटिव चार्जेस बनाए हैं आपने उतने ही नेगेटिव चार्जेस बनाने हैं. ऐसा ना हो कि आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक कम या एक ज्यादा हो जाए. इस क्योंकि ऐसे आप ये डिफाइन कर रहे हो कि जिससे एक चार्ज बाहर से एब्जॉर्ब किया, लेकिन ऐसा नहीं है. नाउ व्हाट हैपन ओवर हियर, अब ये चूंकि चार्जेस हो गए हैं तो पेपर इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और पेपर अट्रैक्ट होगा और इधर इसके साथ यहाँ पे हमारे पास अटैच हो जाएगा इस साइड पे, और नेगेटिव चार्ज जो है ये यहाँ पे रहेंगे एंड पॉजिटिव चार्जेस ओवर हियर. अच्छा बेटा, जो लाइन मैंने लगाई है लाइन के पीछे आपके चार्जेस अभी भी उसी कंडीशन में हैं, मतलब वो अभी भी रैंडम है. जितना एरिया अब इंसुलेटर्स में ये होता है कि आपने जितने एरिया को रब किया है सिर्फ उतना एरिया ही
अपना चार्ज जो है वो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होने की वजह से वो चार्ज को अरेंज करता है। जो जो एरिया रब नहीं होता वो एरिया अपना चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता या उसको अरेंज नहीं करता। इसका सबसे बड़ा मेन ये इससे ये फायदा भी होता है क्योंकि ये दोनों चार्जेस आपस में एक्सचेंज नहीं कर रहे, लाइक राइट और लेफ्ट हमारे पास एरिया जो है, दिस इज योर लेफ्ट साइड, दिस इज योर राइट साइड, सो दीज टू एरियाज आर नॉट चेंजिंग योर चार्जेस विद वन एंड अदर। तो चार्ज जो है वो कंटिन्यूसली एक ही साइड पे, जो जिस साइड पे वो एनर्जाइज हो गया है जो साइड पे चार्ज उसी साइड पे रहता है। और चार्ज सिर्फ उस वक्त मूव होगा जब वो किसी किसी कंडक्टर के साथ इन कांटेक्ट आएगा या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में आएगा जिधर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चांसेस हैं। अब इसकी एग्जांपल ऐसे जैसे आप लोग विंटर में स्केल को रब करते हो, आप पेपर अट्रैक्ट करते हो या आप बैलून्स को बच्चे अक्सर रब करते हो वॉल के साथ, उसको स्टिक कर देते हैं। सो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। ठीक है ना। व्हाट हैपन कंडक्टर, अब कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में हमारे पास चार्जेस नहीं बनते, वो चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस नहीं होते, वो करंट होती है क्योंकि वो मूव करती है। व्हेन अ चार्ज मूव विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, दैट्स नोन एज करंट। ठीक है, चार्ज जो होता है वो स्टैटिक रहता है, वो एक जगह पे रहता है, लेकिन जब चार्ज विद द टाइम मूव करने लगता है हम उसको करंट कहते हैं। नाउ इन अ कंडक्टर, एज इट्स रिटन ओवर हियर, that electrons can freely move from one atom to another. Okay, now a conductor can contains electrostatic charges if it is held with an insulator handle. आपके पास कंडक्टर कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो है उसको कंटेन नहीं कर सकता। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लेट कंटेन कंसीडर आई एम हैविंग सम, लेट्स सपोज दिस इज अ फ्राइंग पैन। नाउ मेरे फ्राइंग पैन जो है इसमें कभी भी चार्ज जो है, लाइक ये मैंने इस पे इसने चार्ज जो है इसमें इसने कलेक्ट कर लिया सम चार्ज, लाइक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में आ गया है। तो ये उसको उस वक्त तक फॉरवर्ड नहीं कर सकता जब तक वो किसी और कंडक्टर के साथ कांटेक्ट में ना या अर्थिंग ना हो जाए या अर्थ के साथ ना मिल जाए। तो अब जो इसका हैंडल होता है इट्स एन इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या करता है, इंसुलेटर उस चार्ज को उस हद तक वहां पे कंटेन रोक के रखता है जब तक उसको कोई प्रॉपर कंडक्टर या कोई ग्राउंड नहीं मिल जाता या ह्यूमन बॉडी नहीं मिल जाती जब तक जिससे वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर सके। इसकी एक सिंपल एग्जांपल ये भी है कि आप किसी भी मेटालिक चीज को हीट अप करते हो, जब तक आप उसके इंसुलेटर को हाथ लगाते हो इंसुलेटर में आपको उसकी हीट फील नहीं होती। उसके पीछे रीजन ये कि इंसुलेटर वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर रहा होता। इसी तरीके से जो चार्ज है वो इस इंसुलेटर के थ्रू आपके हैंड की तरफ ट्रांसफर नहीं हो रहा। सो a conductor can contain electrostatic charge if it is held with an insulator handle. Otherwise, electrostatic charge will be transferred from conductor to ground via human body. ठीक है, ये हमेशा याद रखिए। जो चार्ज होता है या आपके पास इलेक्ट्रिक करंट होती है उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है टू गेट ग्राउंडेड। वो ग्राउंडेड होने की कोशिश करते हैं। ग्राउंडेड का मतलब ये होता है कि वो अर्थ की तरफ जाता है, अर्थ की तरफ, क्योंकि अर्थ इज अ बिगर रेजर्वायर, इट्स अ रेजर्वायर, रेजर्वायर फॉर करंट। ठीक है, जितनी भी करंट्स होती है उनके लिए रिजर्वायर है। ओके, सो हमेशा ये ग्राउंड होके अपने आप को न्यूट्रल करने की कोशिश करता है। हर ऑब्जेक्ट चाहता है टू गेट बैक टू इट्स न्यूट्रल कंडीशन, इक्विलिब्रियम में हर चीज जाना चाहती है। अगर कोई भी चीज लाइक अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे जब चार्जेस यहाँ पे एनर्जाइज हो गई थी लेफ्ट साइड पे इन इंसुलेटर में भी, तो वो भी कोशिश कर रही थी टू गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन जो कि थी इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो हर ऑब्जेक्ट अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करता है और यही कोशिश होती है करंट की भी। ठीक है, so that's the topic. Here we talk about the insulator and the conductor in the term of electric charges. Now let's move to the electric field. Okay, now beta, what is the electric field? अच्छा, अब बेटा होता ये है कि जैसे आप लोगों को पता है कि लाइक इफ यू हैव अ मैग्नेट, आपके पास एक मैग्नेट है, here we have a magnet, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। एंड आपको पता है कि अगर आप इस मैग्नेट के पास कोई भी मैग्नेट रखते हो और हेयर आप कोई भी मैग्नेट रखते हो, तो आपको लाइक इसको भी छोड़ दें, लेट्स गो विथ जो हमारे पास मैग्नेट डिटेक्टर्स होते हैं, हम मैग्नेट डिटेक्टर्स रखते हैं, या आप कोई भी कंपास यूज करते हो, मैग्नेटिक कंपास यूज करते हो जो आपको नॉर्थ एंड साउथ पोल डिफाइन करता है कंपास। सो उसमें आपको ये पता चलता है कि जब भी आप कंपास किसी भी रीजन पे रखते हो तो वो आपको अपने
एरो के थ्रू इंडिकेट करता है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं। अगर कंपास फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ राइट साइड या साउथ टू नॉर्थ लेफ्ट साइड की तरफ, सॉरी राइट साइड की तरफ नॉर्थ टू साउथ इंडिकेट कर रहा है और किसी एक रीजन में जाके उसकी इंडिकेशन जो है वो न्यूट्रल हो जाती है, वो किसी भी तरफ डायरेक्ट करने लगता है, तो इससे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि इस एरिया तक जो कंपास था उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो वर्क कर रही थी। मतलब आप कभी भी कोई भी, या इससे भी इजी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल आई एम नॉट गोइंग विद अ कंपास। आप लोगों ने कोई कॉइन ले लिया, कोई मेटेलिक सेल ले लिया, कुछ भी ले लिया आपने, इट्स अ मेटेलिक सेल ओवर हियर। आपने यहाँ पे रखा, आपने देखा कि ओह ये तो इसकी तरफ मूव कर रहा है, फिर आपने थोड़ा सा ऊपर किया तो अब इस रीजन में ये मूव नहीं कर रहा, तो आपको पता चल गया अच्छा ये वो रीजन है जहाँ पे हमारे पास इस रीजन तक, हमारे पास इस पूरे सर्कल में हमारे पास इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। और इस फील्ड के बीच में जब भी कोई मैं मैग्नेट या कोई भी कंडक्टर रखूंगा या रखूंगी, तो ये जो मैग्नेट है ये उसको अट्रैक्ट करेगा। ये आपको आइडेंटिफाई हो गया, ठीक है। तो आप लोगों ने इस ये जो आप लोगों ने आइडेंटिफिकेशन की थी, दैट वाज अ मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरीके से बेटा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी आइडेंटिफिकेशन होती है कि वो एरिया जिसके इर्द गिर्द हमारे पास इलेक्ट्रिकली जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्लेस होगा, लाइक हम लोग जब भी उसके इर्द गिर्द कोई भी चार्ज रखेंगे, तो वो चार्ज जो है कोई एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। लाइक द रीजन इन द स्पेस अराउंड द चार्ज, एक चार्ज के इर्द जो रीजन है वे एन अदर बॉडी एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा बेटा, नाउ when you talk about the electric field, it is a vector quantity because it has a proper direction. ठीक है, the direction of the electric field represent by the arrow. If the direction of the force sorry represent the direction is the direction of the force of a small positive charge field in the field. अब बेटा अब सिंपल चीज ये आती है कि टेस्ट चार्ज को जरिए हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटा देखो, लेट्स आपने जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिजाइन करना है, डिफाइन करना है, तो यू हैव टू मेक अ सर्कल। अगर आप पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड विल मूव अप, ओके, विल मूव अवे फ्रॉम इट, ओके। अच्छा बेटा, इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि आपने एरोस को बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेट ड्रॉ करना है। आपके एरोस बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ होने लायक चाहिए, लाइक जैसे मैं कर रहा हूँ, इट शुड बी लुक लाइक कि किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से जो है ये ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है। इट्स कमिंग फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ठीक है। ऐसे ना लगे कि ये रैंडम है। लाइक अक्सर बच्चे यूं कर लेते हैं, लाइक दिस इज अ चार्ज और वो एक रैंडम सा लगा लेते हैं, ये क्यों, तो ये इस पे एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देता, ठीक है। सो यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट इट कि आपकी डायरेक्शन क्या होगी। एंड इफ यू हैव अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है, सो फॉर द नेगेटिव चार्ज the arrow is will be directed towards the center. So for the negative charge, the arrow is directed towards the center, like this. Okay, सिर्फ एरो की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब बेटा एक सवाल अभी ये आता है कि हमें किसने कहा कि दैट पॉजिटिव चार्ज इज द चार्ज जो जिसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है। अब बेटा एक्चुअली हुआ ये था दैट हम लोगों ने the experiment was that कि इन्होंने साइंटिस्ट ने they placed some charge over here, एंड वो चार्ज जो था वो दैट वाज अ पॉजिटिव चार्ज बिफोर, बिकॉज हम लोगों को किसी और चार्ज के बारे में पता नहीं था दैट वी हैव सम नेगेटिव चार्ज। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट हमारे जहन में ये था कि दैट एक चार्ज है जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, और हमने जो टेस्ट चार्ज जिसको हमने नाम दिया था दैट्स अ वेरी स्मॉल चार्ज, हमने उस चार्ज को नेम दिया था दैट्स अ टेस्ट चार्ज, और वो हमने कंसीडर किया था, कन्वेंशनली वी कंसीडर इट एज अ पॉजिटिव वन, ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। एंड व्हाट वी फाइंड आउट कि जब हमने देखा कि वो चार्ज जो, अगर कोई चार्ज उसको रिपेल कर रहा है तो हमने उसको कंसीडर कर लिया कि वो पॉजिटिव चार्ज है। अगर आप देखो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल टू ईच अदर। अब और अगर वही चार्ज कोई ऑब्जेक्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा, अब यहाँ पे जो ये टेस्ट चार्ज है ओवर हियर, ये टेस्ट चार्ज देखो, तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, तो हमने उस चार्ज को नेगेटिव कंसीडर कर, ठीक है। सो इन जनरली हमारे पास जो टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट था, हमने ये टेस्ट चार्ज जो था ये हमने बस एक स्मॉल चार्ज था, हमने उसको कंसीडर कर लिया कि वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये कोई हमारे पास कोई सब प्रॉपर प्रूफ नहीं था दैट इज एक्चुअली अ पॉजिटिव चार्ज। और जो जब उसने हमारे न्यूक्लियस ने उसको रिपेल किया, सो हमने कहा कि हमारे सॉरी हमारे जब चार्ज ने उसको रिपेल किया तो हमने कंसीडर किया कि जिस चार्ज ने रिपेल किया है वो पॉजिटिव चार्ज है, और जिस चार्ज ने उसको अट्रैक्ट किया है वो नेगेटिव चार्ज है। और यही बात हमने ये लास्ट में लिखी हुई है, देखें।
The direction of the electric field represented by an arrow is the direction of the force on the on a small positive charge test charge in a field. कि उसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है स्मॉल चार्ज पे जो टेस्ट फील्ड में होता है, ठीक है, इन अ फील्ड. तो दैट्स इट. ओके. नाउ so what happened when you place two same and equal charges in front of each other, उसका क्या इफेक्ट होगा, और opposite charges रखते हो तो क्या होता है. So when you are going to place two same charges in front of one another, so they will start repelling to one another. Like for example, if I'm having a positive charge over here, a positive रख दो, हम ज्यादातर इस concept को ज्यादातर positive charge से explain करेंगे. Okay. So अब होगा क्या, जो हमारा चार्जेस थे, लाइक चार्ज विच वाज कमिंग फ्रॉम हेयर, उसने जाना था, उसने ट्रेवल करना था इस डायरेक्शन में, लेकिन वो चार्ज जो है इट विल बैंड इट फ्रॉम दैट पोजीशन टू द अपवर्ड पोजीशन, वो बैंड कर जाए, ठीक है. सेम सेम गोस ओवर हेयर, ये भी बैंड कर जाएगा, ठीक है. एंड ये जो बैंडिंग होगी बेटा, इसमें आप लोगों ने ये चीज देखनी है कि इट शुड नॉट बी टचिंग टू वन अनदर, ठीक है. एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, और ये इनफाइनाइट पे जा रहे हैं, इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है. एंड वी हैव अ प्रॉपर बैरियर ओवर है जिसकी जिसपे ये बैंड करें, ठीक है. एंड चार्ज विच वाज ओवर हेयर, वो भी हमारे पास बैंड कर जाएगा. ये चार्ज जो है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, दिस चार्ज विल मूव टू द राइट. नीचे वाला चार्ज हमारे पास डाउनवर्ड चला जाएगा, इनफाइनाइट पे वो भी बैंड हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास चार्ज भी डाउनवर्ड बैंड, ठीक है. तो द चार्ज विल बैंड, ओके, क्योंकि दोनों सेम चार्जेस है, सेम एंड इक्वल चार्जेस, ओके. लाइक, तो आई मेड अ डायग्राम ओवर हियर. ये मैंने दोबारा से बनाया है ताकि आप लोगों को एक्सप्लेन कर सको. जस्ट लुक एट दिस डायग्राम, इट वुड बी लाइक दिस. यहाँ पे थोड़ा सा इन चीजों का आप लोगों ने ख्याल रखना, लाइक इधर यहाँ पे देखिए, ये इस चीज का ख्याल रखना है कि दैट एवरी चार्ज शुड बी लाइक इट्स कमिंग फ्रॉम अ सेंटर. ऐसे ना हो कि रैंडम हो. अब आप देखो मेरे जो चार्जेस हैं, इट्स लाइक इट्स लुक लाइक दैट दे आर कमिंग फ्रॉम अ सेंटर, ठीक है. ये एक सेंटर से ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है. इस चीज का बहुत ख्याल रखना है, अदरवाइज एग्जामिनर मार्क्स डिटेक्ट करता है. अब अगर ऑपोजिट चार्ज होंगे, सो व्हाट वुड हैपन दैट. Let's suppose if I'm having a positive charge over here and a negative charge over here. So beta, you guys know that the charge moves from positive to the negative. Okay, so it would be like this. This charge will be like this, like this, and यहाँ पे charge होगा, that would be like this. Okay, और सारे charges जो होंगे वो हमारे पास proper एक आपस में बॉन्ड बनाएंगे. एंड द लास्ट चार्ज वुड बी इट वुड बी ओवर हियर एंड इसकी डायरेक्शन. तो एक डायरेक्शन ऐसा हमारे पास एक ऑपोजिट चार्ज जो होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. जस्ट लुक एट ओवर हियर, एस्टिमेट ओवर हियर, हमने यहाँ पे भी ये चीज बनाई, ठीक है ना. अच्छा, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाह रहा था. लाइक फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस पिक्चर, बल्कि हम इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर देते हैं, ठीक है. एंड मेरा बच्चा, मैं जस्ट आई जस्ट वांटेड टू read few of the lines. अच्छा, अब बेटा, अब मैं आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट देना चाह रहा था कि यहाँ पे हम लोगों ने हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में बात करें. सो अगर अगर मेरे, अब आप देखो, मैंने आपको एक एक डायरेक्शन यहाँ से बताई कि ये जो डायरेक्शन होगी इट वुड बी लाइक दिस, ठीक है. मैं सिर्फ एक साइड पर भी डिजाइन कर रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू मेक द डायग्राम बिलो देयर, क्योंकि वो सेम ही होगा, ठीक है. अब इसके बाद जो बेटा जो इस पॉइंट से शुरू होगा, वो जो होगा वो थोड़ा सा ज्यादा, उसका गैप ज्यादा होगा. आप देखो ये वाला गैप, दिस गैप इज मोर एज कंपेयर टू दिस गैप. बेटा जब ये गैप इंक्रीज होगा, व्हेन यू आर इंक्रीजिंग दिस गैप, ठीक है, इसका मतलब होता है कि वी आर मूविंग अवे फ्रॉम अ स्ट्रॉन्गर साइड, ठीक है. हमारा फील्ड फ्लो हो रहा है और वो वीक हो रहा है. नाउ वी हैव अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दिस एरिया. यहाँ पे इस एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो गैप कम है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है. जैसे जैसे आपका गैप इंक्रीज होगा, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक होने लगी. एंड ऐसा क्लियर ओवर है, यहाँ पे आप देखो, गैप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड शुड नॉट बी कंसिस्टेंट, एक जैसी नहीं होनी चाहिए. आप देखो मैं एक जैसी गैप्स नहीं बना रहा, मैं गैप चेंज कर रहा हूँ.
द रीजन इज दैट अगर मैंने गैप सेम रख ली तो उससे ये अगर मैंने गैप सेम रख ली तो उससे ये होगा कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास हर जगह सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज रॉन्ग। मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड विद द टाइम चेंज हो रही है। सो वी हैव अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड when we have a lesser gap and we have a weaker electric field when we have a more gap। मतलब इन portions की इस portion की weak हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है एज कम्पेयर टू दी सेंटर वन। सेंटर में सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। नाउ here we have experiment to differentiate between the conductors and insulator। बेटा here we have a battery, this is a sign for a cell। लेकिन हमने यहाँ पे इसको बैटरी भी आप लिख सकते हो, सॉल्व है। लेकिन अगर आप बैटरी बनाना चाहते हो सो इट वुड बी गुड कि आप एक हिस्सा का डायग्राम बनाओ। ओके, so this is a battery। now here we have a switch, this is a switch which is open at this spot। here we have a resistor, बेटा resistor थोड़ा सा नीट बनाने का। okay, this is a resistor। here we have a crocodile jaws, it's a crocodile jaws, ठीक है। and here we have a meter, this is a meter। now what how we are going to differentiate between the conductors and the insulator? That's very easy। just if you have any material, just place it in between the crocodile jaw। Like if I'm having a wood strip, if I wood strip, I will place a wood strip in between them and I will check out if the ammeter is showing any deflection। अगर ammeter में कोई भी deflection होती है, उसकी value change होती है, so that is a conductor। अगर मैं कोई भी स्ट्रिप रखता हूँ, लाइक इफ आई एम प्लेसिंग एन आयरन स्ट्रिप, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो होगी अमीटर पे एंड उससे मुझे आइडेंटिफाई हो जाएगा, ओके सो दिस इज conductor। or अगर there is no deflection like for a wooden strip or the plastic, so we came to this conclusion that we have an insulator। okay, so this is a small experiment। just write it down in your own words। आप लोगों को सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया है, so just write it down। if you get a question related to it, so just write it down in your own words। बस आपको मैंने डायग्राम बताना था। so in the experiment you have to mention out that we are going to place a battery, along with the battery we are going to have a open switch or just a switch, not don't call it an open switch because when we are starting the experiment we have to close it। okay, we will place a resistor, along with that we have a crocodile and an ammeter that is connected in a series with the battery। okay, and we will explain then आपने फिर explain करना। first we will place a strip in between the crocodile jaws। if the ammeter shows any deflection, it means that that's a conductor। if it's not showing any deflection, then it's an insulator। yes, okay। now experiment for the electrostatic charge। so okay, so this is the insulators are तो एक्सपेरिमेंट फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कैसे होता है, जो कि हमने पूरा एक्सपेरिमेंट अभी डिफाइन किया। तो सो बेटा व्हेन यू टॉक अबाउट इंसुलेटर, इंसुलेटर्स आर चार्ज वाया फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन के थ्रू हमारे पास चार्ज होते हैं, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल, आप देखो वी प्लेस अ स्केल एंड विद द स्केल वी प्लेस अ नायलॉन क्लॉथ, ठीक है। फर्स्ट हमने हीट प्रोड्यूस की बाय हमने कैसे हीट प्रोड्यूस की बाय रबिंग दीज टू ऑब्जेक्ट। सो जब ये टू ऑब्जेक्ट्स हीट आपस में जो है एब्सॉर्ब करेंगे, सो one body will gain the electron and the other object will lose the electron। अब जो इलेक्ट्रॉन लेट्स सपोज स्केल यहाँ से लूज करेगा, वो हमारे पास नाइलॉन इलेक्ट्रॉन वो गेन कर लेगा और हमारे पास स्केल में पॉजिटिव चार्ज देंगे। और इन केस अगर हमारा नाइलॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सो नाइलॉन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, ठीक है। so the electron will be gained by the other object which is in contact with the body whose are losing its electron। अब बेटा ये ध्यान में रखना है कि आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट इस तरीके से जो हमने भी अभी बताया है, इसमें आप लोगों ने बार बार इलेक्ट्रॉन की बात करी, राइट। इलेक्ट्रॉन विल मूव, यू आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कि हमारे पास प्रोटॉन लूज है, नो। एवरी टाइम द इलेक्ट्रॉन विल लूज, ठीक है। नाउ अर्थिंग इज नाउ एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर सिलेबस। हम लोग ये अर्थिंग का टॉपिक जो है वी विल टॉक दिस अबाउट दिस टॉपिक इन प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे आप बात करेंगे। अच्छा, अब बेटा कैसे एक चार्ज ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करता है, वो कैसे होता है। लाइक मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरे पास एक वुडन लॉग है जो जो कि लाइक एक स्केल है, उस पर सारे पॉजिटिव चार्ज है ना। आई एम हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज इन अ स्केल, जो कि ऊपर मैंने लेट्स सपोज इंड्यूस कर दिया था, इट्स अ पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही मैंने उसको एक वुडन लॉग के करीब लाया या एक पेपर के करीब लाया, सो वुडन लॉग के जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस थे, वुडन लॉग के जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस थे, उन्होंने अपने आप को अरेंज कर दिया और अरेंज करने के बाद
जो नेगेटिव चार्जेस थे वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो दिस इज हाउ ये एक दूसरे को अट्रैक्ट। ओके। सो अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इधर है, सो जो हमारे पे वुडन में जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो उसकी इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि जो अनलाइक चार्जेस होंगे दैट विल कम टुवर्ड्स द स्केल, और पॉजिटिव चार्जेस जो होंगे वो उसको अपने आप को ऑपोजिट डायरेक्शन में अरेंज कर लेंगे। सो हमारे पास बीच में एक हल्का सा बैरियर सा आ जाएगा लाइक वो है, जिसमें नेगेटिव चार्जेस एक साइड पे हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस दूसरी साइड पे चले जाएंगे। सो इन दिस वे एक चार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को इंड्यूस करता है। इंड्यूस का मतलब होता है उसके अंदर changes पैदा करना for a charge. So this is a way to induce a charge in a neutral body. अच्छा बेटा, along with that, let's talk about the over here we talk about the electric field across a charge. अगर बेटा we have a plate, so plate with charges की direction would be from a positive to the negative. It would be like this. देखिए positive से negative की तरफ जाती है। And if you don't have an infinite plate, जैसे अभी infinite plate नहीं नीचे से close हो रही है, तो last जो loop होंगे that would be from पॉजिटिव टू नेगेटिव, और वो कर्व्ड होंगे, इट वुड बी कर्व्ड अ लिटिल बिट कर्व्ड, ओके, जस्ट अ सिंगल वन कर्व्ड होगा। ओके, आपके ये एरिया से आपने कर्व नहीं बनाना, डोंट डू दिस थिंग, ओके। सो दिस इज अ वे टू शो कि आपके जो है वो प्लेट्स में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी बनेगी, ठीक है। नाउ now this is the electric current. Okay, we will talk about this concept in our next class, inshallah. Okay,